Can anybody seeing the chat box? Yeah. Okay. Now I find the chat box, sir. Can you आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए सर. Yes. Now I am enabled to the chat box, guys. Last time it's actually messed up. I need to find where is it? Where is this option? Okay. Okay. How is the website anyway? Can anybody tell how is the website, sir? It took me something like 1 week to create all these things, and it's fine. You know, how is the website, sir? Anybody? Amazing. How is the website? Admit all. No, why you keep on need to admit all? Yeah. Okay. Mahindra. It's good. Okay. That's nice. Okay. Let me. Today's topic is support and resistance. This is the only real concept which we want to discuss, guys. Okay. This is all over the market, the 40% is only support and resistance. Okay. People keep on saying that can never sell at resistance and never, sorry, never buy at resistance and never sell at support, right? Can you people able to see me? uh, just one more, please keep on saying, please say that I can see you so that I can understand that okay, you are seeing me, because I'm unable to see me. Where is this hide video panel? Okay, now I'm able to see you guys. Okay, the chat box is also for us for this time. Okay, I can see you. And we're just starting in a minute, sir. Okay, Jaychandra sir, you're online, I don't know. I need to admit these people. Okay, I'm switching to whiteboard, sir. Let's start. What is support and resistance? I'm not going to mess up with your brains first, but believe me, if you want to get into the supports and resistance, first you need to understand the buyers and sellers. I have already uploaded the video in YouTube, guys. First go and watch it. Then we are going to continue. The support and resistance is something like a thick wall. Okay, it's like punching wall. You want to punch the wall, right? It's like a thick wall. The pre-contest is हर एक बंदा, हर एक ब्रोकर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जब प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोगों को एक थिक वॉल बन जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ड्राइंग इट फॉर अ ब्रीफ व्यू. दिस इज अ जीरोदा, दिस इज 5 years, दिस इज आस्था, दिस इज आईसीआईसीआई, दिस इज समथिंग एल्स ब्रोकर. यू नो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मतलब कि क्यों प्रोवाइड करते हैं वो मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बताया था. जब जब हाईएस्ट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कैंडल is different for each broker, okay, because of the milliseconds they are taking the 10 ticks only, and if they are taking 10 ticks, then each millisecond the price gaps occurs, then each broker will provide you a different wicks provide करेंगे, मतलब highest of the candle, high of the candle. okay, then कुछ बंदे रेसिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कुछ बंदे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कुछ बंदे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के हिसाब से, तो वो एक थिक वॉल बन जाता है. ओके, सो हर एक बंदा रेसिस्टेंस के पास सेल करने लगेगा, तो ये पूरा रेसिस्टेंस है. रेसिस्टेंस और सपोर्ट इज नॉट द सिंगल लाइन, इट्स नॉट जस्ट लाइक सिंगल लाइन, इट जस्ट लाइक समथिंग लाइक दिस वन. दिस इज ऑल रेसिस्टेंस. okay, when we buy, we take from for this only. We don't want to target this one because people keep on selling it. Maybe it can up to this point and it can, मतलब वो वापस भी आ सकते हैं, तो हम उस पॉइंट को नहीं लेंगे, जो नीचे वाले पॉइंट को है उस पॉइंट को ले सकते हैं.
Okay, try to understand this. Then we are going to discuss what is the actual support and resistance. I'm just clearing the drawings, guys. Okay, now there is a thumb rule, guys. Okay, if you understand the support and resistance, अगर आप समझ पाओगे support and resistance को, अगर आप perfectly draw कर सकते हो, अगर आप perfectly उस चीज को देख सकते हो, तो मतलब आपको 40% स्टॉक मार्केट आ चुके हैं. ओके, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर आप आप बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे ये ट्रेंड है या चैनल है और ये रेंज है. और ये रेंज है. और ये रेंज है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना बड़ा मैटर करते हैं. ठीक है, जब हम लोग ट्रेंड को देख रहे हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. ओके, हम यहाँ पे बाई करना चाहते हैं. ओके, अगर ये चैनल है, अगर इसको ब्रेक किया तो चैनल में आप यहाँ पे बाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा कि कब चैनल बन रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना बड़ा मैटर करते हैं. मैंने जब पहली बार मेरी मेंटर में मेरे को समझा रहा था तो मैंने बहुत लाइटली ले लिया था. हाँ ठीक है, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज बेस के ऊपर आप 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ा करने वाले हैं, तो आप इस चीज को परफेक्टली सीखना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो आई एम गोइंग टू, मतलब मैं आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और चार्ट में दिखा भी दूंगा. ओके, जिन बंदों ने इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप मेरी व्हाट्सअप नंबर पे नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको फ्यूचर की वेबिनार जब भी होता है मैं आपको भेज दूंगा. मेरा नंबर 8309344585 है. ओके, सो लेट्स गेट इनटू टॉपिक अगेन. सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. ओके, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक एक कार ट्रैवल कर रहा है. समझ लीजिए कि एक कार ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, उसको एक स्पीड बम्प आया. ओके, स्पीड बम्प आया तो थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर कार एक जगह पे हॉल्ट हुआ, आगे नहीं जा रहा है. लेकिन ये टाइम है ना, तो हॉल्ट हुआ लेकिन जा नहीं रहे, मतलब सामने नहीं जा रहे ना पीछे आ रहे हैं. ठीक है, फिर कार फिर टाइम के साथ ट्रैवल कर लिया. यहाँ पे एक पुलिस खड़े हैं, समझ लेना यहाँ पे एक पुलिस खड़े हैं. तो पुलिस को देख के ड्राइवर वापस मुड़ने लगा, नहीं तो पुलिस ही वापस भेज रहा है उसको. ठीक है, हम इस चीज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं. इस चीज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं क्योंकि यहां पे कार स्लो हुआ लेकिन वापस नहीं मुड़ी, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है. यहां पे कार हॉल्ट हुआ लेकिन वापस नहीं मुड़ी, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है. लेकिन यहां पे कार वापस मुड़ी और उल्टा आया. सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर चलती है, सॉरी. ओके, जब कार वापस मुड़ी तो उल्टा आ रहा है, तो इस चीज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं. यही अगर इस कॉन्सेप्ट का आप समझ पाएंगे तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना 80% आया. ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि ओके आगे क्या होता है और मैं मतलब क्या दिखा दूंगा, उसमें चार्ट्स में दिखा दूंगा थोड़ा सा. लेकिन आपको इस चीज को लेके कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा. ठीक है, स्टिल सम पीपल आर वेटिंग. Okay, then we are going to. This is a very important topic, so I want to discuss it with more. Okay, let's take a different example. एक बंदा दौड़ रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर दौड़ना स्टार्ट किया, फिर ज़्यादा लंबा रेस्ट लिया, फिर दौड़ना स्टार्ट किया. यहाँ पे ये बंदा रुक गया. ठीक है, फिर वापस मुड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, इस चीज़ को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मानते
क्योंकि ये सब एक ही रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे वापस मुड़ा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, मतलब वो सामने जा रहा था, टर्न होके फिर वापस मुड़ा। इसी चीज को आप समझिएगा, ठीक है। हम अभी चैट्स के अंदर जाने वाले हैं 1 मिनट के अंदर। ओके, लेट्स ओपन मी अप द चैट्स गाइस, जस्ट अ मिनट, वी आई ओपन द चैट्स। ओके, मैं जस्ट अभी उस वीडियो को अपलोड किया था जो अभी मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक वेबिनार बना था, उस वीडियो को अपलोड किया था, तो ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है यूट्यूब में। और ये रहा गोल्ड चैट, हम अभी गोल्ड चैट को देख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, सो मतलब टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करते, मैं अभी 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में हूँ गोल्ड चैट के, और मेरा ये रिसेंटली ट्रेड है, this one is to 8.93 trade. So I really badly want to do it, but yes, it's fine for me. I just exited it here when the price is turning up, but it has given a very lot, but I couldn't predict it. Actually, I was thinking that it will go up and I can sell it here, लेकिन वो एकदम स्ट्राइट फॉरवर्ड चले गया था, ठीक है। देन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहले हम मतलब कोई भी अभी जीरोदा भी यूज़ करो और फायर्स यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन चैट्स हम ट्रेडिंग व्यू से ही लेते हैं, tradingview.com से लेते हैं। और जीरोदा अपना इंटरनल चैट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, और फायर्स भी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम लोग सपोर्ट एंड ड्रॉ करते हैं तो पहले हम हॉरिजेंटल रे लेते हैं। ओके, वी वांट टू ड्रॉ इट, लेट्स सी, वी आर नॉट वाचिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ड्रॉ नहीं, हम ये पूरे को ड्रॉ देख नहीं रहे, बस हम इस मूव को देख रहे हैं। यहाँ से बंदा स्टार्ट हुआ, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये इसको मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक वापस आया इसने, और ये ऊपर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब ऊपर चलना स्टार्ट किया तो ये हुआ क्या है, मैंने जो बोला, मैं मतलब मैंने जो हिसाब से बताया था, ये होता है इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द एक्यूरेट 1 टच, 2 टच, 3 टच। तो मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ ब्रोकर्स में मैंने जो बताया था, अब ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स पे चले गए। हम जब भी गोल्ड ट्रेड करते हैं या सिल्वर ट्रेड करते हैं या कॉपर ट्रेड करते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट्स को, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितना भी प्राइस गैप है वो सब अभी सपोर्ट है, जब ये ब्रेक कर देगा तो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में चले गया, तो ये जो कैंडल ऊपर आया, ये जो कैंडल ऊपर आया था, इसके मतलब वहां पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब इस पूरी पूरी सीरीज को देख लीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूं, प्राइस यहां तक आया तो हम बाई नहीं कर सकते। जब भी देखिएगा प्राइस यहां से यहां तक आया तो हम बाई नहीं कर सकते, इस पॉइंट के बाद हम बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां जाने के बाद प्राइस कभी ना कभी तो वापस मुड़ेगा, वैसे ही ट्रेंड बनते हैं, आपको पता है ये बात है। तो ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं बहुत रिस्क लेके यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए मैंने सोचा था कि जब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखिए क्लियरली देखिए, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर चले गया, फिर वो वापस आना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 बार स्टार्ट किया, तीसरे बार में ब्रेक दे दिया था, फिर मैं इस सपोर्ट एंड इस रेजिस्टेंस हो गई है, और ये ऊपर जाने के बाद समझ रहे हैं ना, मैं बस बताते हुए जा रहा हूँ, प्लीज बताइए कोई। Yes, it is going very good. यप, जब यहाँ पे आया तो लोअर टाइम फ्रेम में मैं जस्ट इसी को देख रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में मैं जस्ट इसी को देख रहा हूँ। जब ये वापस आया
तो मैं सेल करने वाला हूं। मतलब मैं क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, यहां पे मैं सेल करना चाहता हूं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने जो 2 लाइन जो ड्रॉ किया था वो रेजिस्टेंस है, और मैं इस पॉइंट पे एंटर करना चाहता था। मेरी स्टॉप लॉस देखिएगा, मेरी स्टॉप लॉस एकदम थोड़ा सा ऊपर है, और मेरी टारगेट्स यहां तक है। क्योंकि जब पहले पुश यहां तक आया, तो सेकंड पुश इस चीज को लेके कहां तक आ सकते हैं, ऑलमोस्ट यहां तक, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इस पॉइंट पे, सॉरी, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बन रहा है यहां तक। ये पूरा सपोर्ट बन रहा है इस चीज का, तो मैं यहाँ पे एग्जिट होने का चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता था कि ये एक बार वापस आ जाए, और मैं फिर यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, और मैं पोजीशंस को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने 3 लॉट लिया, उसको 6 कर सकता हूँ, और अगर मैंने 10 लॉट लिया तो उसको 20 कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सेल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जिट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि सेम रूल अप्लाई है। एक बार नीचे आने के बाद हम सेल नहीं कर सकते हैं। अगर सेल करना है तो ये बेस्ट पॉइंट्स हैं। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ड्रॉ करने लगेंगे, तो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई हो जाते हैं। बहुत हाई इसलिए हो जाता है कि आप एक्यूरेट पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, और उस पॉइंट के बाद अगर प्राइस आपके अगेंस्ट में जाएगा ही नहीं। ओके, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गाइस। नॉट गेटिंग द ऑडियो, join again. ओके, एक बार अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, तो उस चीज में आप माहिर हो जाओगे, फिर आपको स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान होगा। People still are coming, guys, and thank you so much for trusting me, guys. Okay, you people have supported me very much. Okay, first you need to understand the support and resistance. Based on support and resistance, you will understand trend channels, ranges, और उसके बाद आप एंट्री एग्जिट्स एवरीथिंग आप समझने लगेंगे, ठीक है। एवरीथिंग, एग्जिट्स, एंट्रीज, एवरीथिंग आप समझने लगेंगे। उसके बाद फिर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर 1:3 में ट्रेड करेंगे, 1:5, 1:7, 1:10, 1:20। उसके बाद आप रिवर्स में आना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि 1:27 ट्रेड मेरी बेस्ट ट्रेड था, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ उसको। सॉरी गाइस, आई नीड टू चेंज दिस कलर टू रेड। 1:, सॉरी, आई कांट राइट। ओके, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। पहले पुश यहां तक आया, तो सेम चीज देखिएगा। यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना, यहां पे टर्न हुआ, फिर इसको ब्रेक किया, फिर प्राइस वापस आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्राइस वापस आना स्टार्ट हो रहा है। इज दिस एन एंट्री पॉइंट और व्हाट? ओके, वी आर नॉट वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स, गाइस। दिस इज द एक्सेसिव ऑफ डेटा। मतलब आप इस डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो उस डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। जब इतना हार्डली पुश किया, फिर वो वापस आ रहा है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। फिर यहाँ पे आप फिर एंट्री ले सकते हैं। देखिए, एक्यूरेट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं क्या? मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। इट्स एक्चुअली कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन, बट आई टेल यू। ओके, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं क्या? ये भी तो टर्न है ना, ये भी तो टर्न है। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैं अभी जस्ट बता दूंगा, क्योंकि इस चार्ट एक्चुअली कंफ्यूजिंग टाइप की लग रहा है, लेकिन दिस इज द टर्निंग पॉइंट, राइट? फॉर दिस वन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इट ब्रेक above. See this one? See that one? This is the support and resistance. Okay, it has given us profits. It has given the profits until now. Here, can you trade this one? We are neglecting this one. Okay, it's fine, because we are watching the recent data only.
Okay. Then again, there is more supports and resistance. Based on this concept, you will understand the trend, channel, range. Based on this concept only, when you find out this one is very much good, then everything will fall into the plug. Okay. For some people, I already told you that market is not something like ओनली वन एप्पल ये ऐसा नहीं है, ये एक तार टाइप का है, मतलब नेट, झाली, कुछ भी बोलिएगा, कि वैसे टाइप का है, क्योंकि ये तार जाके उधर भी टच होगा, इधर भी टच होगा, इधर भी टच होगा, इधर भी टच होगा. ओके. So this is how we are doing this. I'm just getting into the chats, guys. Then I'll tell you where you cannot enter, where you can enter. Okay. I'm just going into the whiteboard. Okay. Now did you understand that this is a support and resistance? It will respect this support and resistance. Okay. It will support, it will respect the support and resistance. People still wants to join. Okay. I'm just cleaning the board. When the trend is forming, what we are actually looking is maybe tomorrow. No, tomorrow there is a busy schedule for these 3 webinars, guys. Okay. I just want to do the 3 webinars. Maybe next week I'm going to again do the webinar on buyers and sellers strength. Okay. Next week, I think. Okay. People, let me contact some people. So at least there should be 100 people to attend this webinar. जब 100 बंदे हो जाएंगे तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस दे पाऊंगा. सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल से समझा देता हूँ कि जब प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ और फॉल करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, फिर जब प्राइस यहाँ से बढ़ने लगा तो यहाँ तक पहुंचा. इसको बोलते हैं बायर्स पावर, इसको बोलते हैं सेलर्स पावर. ठीक है. हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा कि बायर्स ज़्यादा डोमिनेंट है या सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट है. इट्स अ सिंपल नटशेल, गाइस. ओके. हम सेम चीज़ को, आप इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए. मैं इस सेम पार्ट को यहाँ पे बनाया था. ठीक है. सेम सेम पार्ट था ये. ठीक है. हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस, अगर सेलर इतना वीक है टू कंपेयर टू विद दिस बायर, प्राइस कहां तक वापस आ सकते हैं? ओके. 10 मिनट्स लेफ्ट, गाइस. ओके. प्राइस कहां तक वापस आ सकते हैं? हम एक गेस करते हैं कि प्राइस कहां तक वापस आ सकता है. ठीक है. प्राइस यहां तक वापस आ सकता है, प्राइस यहां तक वापस आ सकता है, या प्राइस यहां तक वापस आ सकता है. बेस्ड ऑन दीज टू, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम वेट करते हैं. ठीक है. तो नीचे आ जा बेटा. तो नीचे आ जा. हम खरीद लेते हैं. हम बाई करना चाहते हैं, ना कि सेल करना चाहते हैं. कि मैंने जो सेल यहाँ पे किया था, अभी जो एक गोल्ड का ट्रेड दिखाया था, वो बहुत ही हाईली एडवांस्ड है. हम मनी मैनेजमेंट को टच टू द ग्राउंड जब फॉलो कर सकते हैं तो ऐसे ट्रेड को कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप इमोशनली बह रहे हो तो मतलब नहीं कर सकते हो. ठीक है. पीपल स्टिल सेइंग दैट कि नॉट ऑडिबल, यू माइट रीस्टार्ट. ओके. हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स पावर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अगर सेल करना चाहते हैं तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा. उसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम मिलेगा. जब आपकी फ्लो अगर ऊपर की साइड है, जैसे कि हम मतलब नहर में स्विमिंग कर रहे हैं, फ्लो अगर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे. आपने कभी फील किया होगा ना कि अगर नहर में फ्लो आपके साथ है तो एकदम फास्ट चले जाएंगे. ठीक है. धीरे धीरे वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको ज़्यादा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं. ठीक है. एक बार देख के ऐसा मत बोलिएगा कि ठीक है, इसी वीडियो के अंदर कुछ नहीं है. नो, इट्स नॉट. 2 चीज़ें हो सकते हैं, या तो आप जो टीचिंग कर रहे हैं उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, या तो आप उनसे भी ज़्यादा एडवांस्ड हो. अगर एडवांस्ड समझते हैं तो प्लीज़, थैंक यू सो मच. And agar okay, he is saying something, then you need to watch 2-3 times, guys. Okay. I'll upload these videos into YouTube and I'll get back to you with the link. See, people still keep on coming. Yeah, that's fine. Next time I'll change this webinar platform. Okay. हम यहाँ पे बाई करना चाहते हैं. सेम चीज
ये कौन सा ट्रेंड बन सकता है और कौन सा चैनल बन सकता है, मेरे को जस्ट ये बताइए, कमेंट्स में रेडी रखिएगा, कौन सा चैनल हो सकता है और कौन सा ट्रेंड बन सकता है। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट्स गाइस। फर्स्ट वन या सेकंड वन, इसके अंदर कौन सा ट्रेंड बनने का चांसेस है, ज्यादा चांसेस है? अप ट्रेंड नहीं, फर्स्ट वन ट्रेंड बनेगा या सेकंड वन ट्रेंड बनेगा? ट्रेंड कौन सा बन सकता है इसमें? ट्रेंड कौन सा? फर्स्ट वन या साहा, फर्स्ट वन, दैट्स नाइस। या फर्स्ट वन, from Ram to everyone, it's a second one. Okay, go ahead. Ashish, first one. Okay, why this will become a trend means here is a support and resistance. Whenever the price is above the support and resistance and it is going to make another high and high, that means it is a trend, right? Okay. इस सेलर से लेके इस बायर को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब सेलर्स फिर आएंगे तो यहाँ तक आएंगे और ये यहाँ पे फिर बनेगा, तो ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है? और इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ तक आया तो based on sellers and buyers comparison, buyers are not that much strong. Okay, try to understand the concept because you are going to see it again and again in the markets. Okay, when you see the real ranges or channels or trends, you need to find out only one thing. What is that? Is support and resistance. If it is a support, if it is breaking the support and resistance, that means it is going to convert into a channel. Okay, here is the support and resistance. जब बायर्स स्टॉप किया बाई करना तो फिर सेलर्स आएंगे। सेलर्स यहाँ आके नहीं रुक सकते हैं। जब अगर बायर्स बाई करना स्टार्ट किया तो बायर्स यहाँ से शुरू नहीं होंगे, क्योंकि सेलर्स को टेक ओवर करने देंगे। सेलर्स यहाँ तक आएंगे, जब यहाँ तक आया तो फिर बायर्स को लगेगा कि ओके वी कैन टेक इट फर्दर मूव, इसीलिए चैनल्स बनते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकते हैं और एग्जिट पॉइंट्स कहाँ पे बन सकते हैं। आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी चैनल मोड में है। आपको पता चल गया कि ये चैनल, जब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक किया और यहाँ से टर्न करना स्टार्ट कर दिया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक खतरनाक रेजिस्टेंस बन सकते हैं, ठीक है? व्हाट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे? ओके, द कॉन्सेप्ट इज दिस इज द वन गाइस, बट अगर आप सोचने के लिए बैठेंगे, जो मैंने बताया था वो सोचने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा अंदर घुसेगा। बस इतना ही देख के आप बोलेंगे कि नो आई कांट लर्न एनीथिंग, दैट्स डिफरेंट कंसर्न, बट आप सोचने के लिए बैठ जाना, एक पेन एंड पेपर ले लेना, ये ड्राइंग्स 1000 खींचनी पड़ेगी आपको, ठीक है? 1000 खींचनी पड़ेगी तब जाके ये कॉन्सेप्ट ब्रेन के अंदर चलेगा, ठीक है? व्हाट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे? यू नो it is more like if you are asking this question, that means you are not fit for intraday, sir. Trust me. Otherwise, this might be very rude for you. मैं आपको बहुत रूडली बता रहा हूँ, लेकिन द फैक्ट इज द फैक्ट, सर। ओके, इस क्वेश्चन को आप पूछ रहे हो, इसका मतलब आप एक चीज कर सकते हो कि आपकी टारगेट कितना दूरी पे है और आपकी स्टॉप लॉस कितना दूरी पे है और उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, प्रीवियस डेटा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग is 15 minutes. Okay, you can go to the 5 minutes also, but we are not recommending it to anyone because we प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी को रिकमेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपको 3 मिनट जाने के लिए टाइम आया ना तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि यस यू कैन डू दिस। जब आपको 5 मिनट्स जाने के लिए टाइम आएगा ना तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, ठीक है? मेरी मेंटर हर बार बोलते कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता था, मैं पूछता था कि उनके मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं, तो जब तुम कर सकते हो तो ब्रेन तेरे को ऑटोमेटिकली बता देगा, ठीक है? मैं हर वीडियो में एक चीज जरूर जरूर बता दूंगा, नेवर रिस्क मोर देन 1% इन एनी सिंगल ट्रेड ऑफ योर कैपिटल, राइट? ओके, लेकिन मैं खुद 5% रिस्क करता हूं,
क्यों पता है? मैं ये चीज़ आपको नहीं बता सकता क्योंकि जब 5% रिस्क करना है तो मेरे को खुद को पता चल गया कि यस आई कैन डू 5% रिस्क आल्सो। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, 15 मिनट्स 15 मिनट से कोई भी बंदा आप डाउन में बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग यू गाइस। ओके, सुरेश सर मैं भी आई क्लियर्ड योर डाउट्स आई थिंक। ओके, पहले आप 1 आवर चैट में देखिएगा, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक देखिएगा। उसके बाद जब ये उल्टा मुड़ना स्टार्ट किया तब आप 15 मिनट्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब वो उल्टा मुड़ना स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री ले ले, तो आप 15 मिनट्स में देख सकते हो। जब 5 मिनट्स में जाओगे तो ये छोटा सा अप ट्रेंड बनना स्टार्ट करेगा, तब आप एंट्री ले सकते हो इस टारगेट के लिए। ठीक है, या आई हैव ऑलरेडी शोन यू ऑन रियल चैट सर, मे बी यू जस्ट जॉइन ना। 15 मिनट्स या इस टारगेट पे, और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बनेगा। आप 1:3 में ट्रेड कर रहे हो। ओके, 1:3 में ट्रेड कर रहे हो। मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। मैं आपको आई गेट बैक टू द लिंक ऑल्सो। एंड लास्ट 2 मिनट्स बचा है, किसी को कुछ डाउट पूछना तो फटाफट पूछ लेगा। एंड आई नीड